Marta? Nee, niet. We gaan spullen zoveel mogelijk in de auto laten. Als het nodig is, gewoon uithalen de brengen naar de auto. Ja, we kunnen wel wachten. Iwan moet nog maar wat gepland. Want hij is nog dik. Dus misschien gaat de auto kapot. Misschien was Iwan kapot gegaan. En toen hebben ze het vastgeplakt. Ja, dat zou heel goed zijn. Oh, Haribo. Ja. He's crying. Doe met haar is niet. Huh? Now happy again. Now happy? No, I have a hat. Inside the fur. This is Paramaribo Zoo. This is not a tiger, no? There was a tiger. Was a tiger. There was. Very skinny. Still there or not? I don't know if he's still alive or not. Life or not, the what you have to say. I do not say alive or not. Will not alive, will not there. That's the problem. Ja, ze gaan open eerder voor ons. 9 to 6. Yes. She's one of our devotees. They opened earlier for the group. She's working They here. opened I don't know. There's already one devotee inside. She's working here, no? Premanandi Didi. Oh, one He's second. opening. One second. Ja, sommigen betalen met. Zal ik het regelen? Haribo. Die gepast hebben, die kunnen al geven. Ik heb net niet gepast met elkaar want anders als we niet te laat. Ja. En dan gaan we achteraf betalen. Achteraf betalen dan, of vooraf, weet ik niet. We kunnen gewoon binnen. Gewoon, wat is gewoon? Wat betekent gewoon? Zonder betalen, met betalen? Die meneer van de grond gaan betalen. Oh, dan moeten we dan betalen. Oké, nee. What is it? That's about sharing something betalen, niet sharing. Maybe, yeah. Ja, ik heb dan die dame gesproken. Jullie komen voor de dieren opbieden. जनावर के लिए आप लोग प्रार्थना करने के आए हैं या सेशन करने आए हैं तो मैं उनको बतिया चुके हैं नहीं काम नहीं करते हम लोग बहुत जल्दी से आ गए थोड़ा मैंने हम जानते हैं कभी काल के स्कूल में पढ़ाते थे तो लड़कन के लाते थे हम लोग यहाँ Oh, अच्छा अच्छा. तो एक स्त्री से मैं बतियाई कि आप लोग एक भक्ति भाव वाला ग्रुप है तो आप हम लोग ना करो इतना देर तो बोले आ सकते हैं वो जो फ्रंट पर अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं आए तो नौ बहुत देर हो जाएगी हम लोग अपन काम कर सकते हैं Ja? We hebben getraind. Ah, yes. Harikata place. We gaan dieren spotten. Kijk hoe snel een beetje. Oké, ik heb het goed hebben we nog een dierentuinlijstje die ons deze Nee, dat vind ik niet leuk. You can see the monkey. Monkeys, monkeys. Iedereen mag kijken waar het is. Ga je kijken een aap? Monkeys. Kijk, daar een zwarte. Kijk apen. Monkeys. Monkey. Kijk daar. Oh, kijk, hij is aan het schommelen. Hij maakt show voor ons. Zo schattig. Schattig, hè? Ja. One monkey. Nog één en nog één. Oh, mijn moeder is bang voor. Mama. Zo lief. Kijk zijn gezichtjes. Kijk hoe ze schommelen. Ah, ze hebben Gurudeel gezien. How many legs do they have? Huh? How many legs do they have? Eentje met Nou, een ik heb een staart.
वृंदावन के बंदर और चालाकी है। हैं? वृंदावन बंदर के वो लोग और चालाकी है ना, छोटे छोटे बच्चे ही हैं। बच्चा बच्चे Kijk, zo groet ons. Ja. तो उधर को अंदर घुस गया। पूछ से वो इधर आ नहीं सकते। नहीं पानी से पानी क्या है? Orada niet zijn het lopen. Daar aan het lopen. Hij is nu aan het klimmen. Kom er nog meer, er komen nog meer uit het huis. Het zijn apen. वृंदावन moet je je bril vasthouden. Nee, want daar zijn Vraag maar aan Krishna Kripa. Hij is 2 keer zijn bril dingen. Je bril kwijt. Goed op. Je hebt hem maar een pakje van. वो अपने पूछ के इधर पकड़ के रखा है। इसे लग रहे 5 पग है। 5 अंग है। हैंड, लेग, 2 आर्म्स। इसको क्या बोलते हैं क्या? टाइप ऑफ मंकी कहीं लिखा हरे कृष्णा हरे Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, राम राम हरे En baby aapje dat al gewoon. हनुमान की We zijn er. Hier in de boel. Kijk daar, vogeltje. Een babyvogeltje. What is the name of this? The name. Species. What is the name of this monkey? No guide to the where to go. I'm sure you can. Après, besoin de l'aider. Ja, ze komt eraan. Ja. Ah, big group. Yeah. गधा ये क्या है मानव जी? हैं? हैं? Pig. No. Guinea hamsters. Guinea pig. Guinea pigs. Oké, aan de rechterhand ziet u de Guinea pigs. I'm very scared. ये देखो What is this? ओके
Is dit een struisvogel? Dat zijn kalkoen. We zijn al binnen, ja? Dan komen jullie naar binnen. Oké, zie je. Oké, je kan gewoon naar binnen lopen. We betalen en achteraf worden we gezegd. Ja? Nice, hè? Is dit een struisvogel? Nee, dat is niet zo. Nou, dat bedoelde ik niet. Kijk daar, mama. Another monkey. Oh, hier hebben we de kinggier, broeder. Pardon? It's called kinggier, but gier, I don't know the name in English. This bird. Yes. Vulture. Poacher. Vulture. V-U-L. From Jungle Book. T-U-R. Oh, yes, from Jungle. Is dat een schedel? Schedel, kan wel. It's Jatayu. Jatayu. Look like Jatayu, no? Yeah, they're waiting till they die. This is their food. Huh? Food. Another monkey. Same monkey. Helemaal bril. Hare Krishna, Hare Krishna. Is this a mango tree? Is dit een mango tree? Monkeys are funny. Zo schattig. Kijk hoe het gezicht van die apen. Unusual. Ze zijn te Poach. santoos. This is a symptom of an open appetite. Hare Krishna. Sanskrit pranam. The monkey. So good, Really? Yeah. spontaneously. Oh, Hare Bol. Hare Krishna. Hare Bol. Nee, nee, zo. Krishna, Krishna, Krishna. ऐसे करे हाथ दे हाथ पे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. ये लोग पानी के ज्यादा डरते हैं क्या? Yes. They like to move. They cannot sit still. For this regard, Kijk, die andere gaat helemaal omhoog. Restless. Puppies अपने का ऑप्शन होता है सबके लिए. Always very restless. they never 1 second you can see they sleep on you. If they are tired, they another thing. Otherwise, always they are laughing. मेरे ख्याल से ये पानी से बहुत डरता है. Kijk, heel grappig. Lekker zo van je vijver omarmen. अपने पूछ से ये कर रहे हैं. This monkey's name is Prata. Huh? Prata. Very expert with it. They
Guatamang. Pwede ko amgil. Kaya amgil. It's a mango And then tree. one more one. There you go. And the mango just... You fell there. I'm not getting that mango. Kijk out zo. No, no. No, Ja, zo. there's plenty at home. Heavy je tadi ya sampai kalau. Nice to see how they swing with their tail underneath. तो रामचंद्र के समय कितने प्रकार की मंकी था? रामचंद्र के समय, हाँ, जब रामचंद्र लंका जा रहे थे तब मंकी कितने प्रकार की मंकी आ गई? अनेक प्रकार की। Het is niet echt goed beveiligd. Ja, als hij boos wordt, kan ik gewoon zo in het open. Ja, dan ben je klaar. Weg gewoon. बोर बिल्कुल हम भी बिल्कुल बोर बोलते हैं बोर Where did you find that? In a tree. You climbed up so it's very sweet. It's called... Nee, je gewoon zorgen die wat schepen. Dat kost wat geld, hè? Voeding en zo voor die apen en al die andere dieren. We are coming out of the mango. Yes. Yes. This is our review. Klein, hè? Hoe is die? Poetskerm. Pachim. Ga je samen challenge het pachim? Crocodile, lion है, So similar. Some peacock. someone adopted that. Maybe we will dance. But then it starts raining. Wow. A white peacock. Rodokak. Peahen. Die is kapwa. Oh, definitely. What is that? Some pigs on that side, you know. Wild pig is. Okay. Look at that blue papagaai. No, it's over there though. Oh wow. Oh. Very unusual. What is this? Zo'n miereneter. Is it zo'n... Look like boar. Yeah, there's some on that side. They're big, yeah, they're big. Peacock on the wall? Yeah. Misschien mij. Dat is een beautiful. Barat and drill.
Haribol, Haribol, Haribol. Als we even wachten zodat die dame kan tellen hoeveel mensen er zijn. Volwassenen en kinderen. Mag dat voor haar toch? What's that in English? There's one lady is coming, so she can count how many people are here, like adults and children. So can you know how much? आज काम पर छुट्टी ले छुट्टी ले यार दीदी ने काम पर से We kunnen achteraf betalen. Waarom niet? ठीक है गुड reptile oh मगरमच्छ नहीं ये तो पुष्पा है सूट है वो छोटे कहाँ है? वो है देखो look at that Kijk zo blij. Maar ik zie niks van die. Maar het zijn... The boatman, his previous life was tortoise. huh The boatman, the boat, his previous life was tortoise. Die kaiman is dood. Huh? You had a crocodile here. Normally there was a crocodile here. no crocodile He left his body. हाँ लेफ्ट बॉडी खत्म हो गया This area was too small for him. No bamboo. ये लोग अभी ये लोग फ्राई करते हैं छोटा छोटा ये Kijk hoe mooi. इसका मांस खाते हैं I think they make chickens or something and keep nuggets. And This is from this. is een hier zo'n boskonijn. McDonald's बड़ा बड़ा कंपनी Konkoni. मांस छोटा छोटा मार देते हैं और खाते हैं Male है male को काट देते यही बढ़ेगा लाइन नहीं दिखा खिलाते वही आगे कुछ अच्छा चलो हो जाएगा एक लाइन भी है गुरुदेव लाइन भी है कहाँ पर पीछे इधर देना पड़ेगा हाँ More the cap, more. ja loop samen ik ben er loop samen maar hij wil met jou lopen पानी में कुछ है ये इसमें क्रोकोडाइल था मगर अब नहीं है इसमें क्रोकोडाइल था काइमान लेकिन अब तो नहीं है He was very old
He was very old. Never. Actually, the government is not putting so much money in there too. Because there's so many plenty of space, but so less animals. Because they have to pay everything, you know, for food and everything, water. So they don't want to put so much. Wil jou er niet op hebben? Actually, it is nice for. It will be rain. Rain is coming, huh? Are we going in that? Inside here. Here? We can go there. This way and then that. Je krijgt zegen, dat is het. Van iedereen. You can go here. Face. That's bigger. मस्ती आ रहे हैं वहाँ मस्ती आ रहे हैं Mara laia. Kom zitten. Ik ben ook zo bij die Dol op die. Ja, ik denk dat ze hier ook kunnen. Hier is de klas. Hoe is de klas? Otherwise you can get my class. Ik heb Ja, aan die kant. Microfoon. De speaker waar je niet de microfoon? Zo, dat net hè. Ik heb geluk met dat ik flow. Testen. Geef maar. Can set it up, yeah. There. Look, Victor is here. Did you see the blue one? Hare Krishna. Hare Krishna. Look, he has mosquito on his turban. There's so many mosquitoes. Open the bag. Open the bag. There's a fan inside for the mosquito. There are so many mosquitoes. Can you do that? There are so many mosquitoes. Look. Everywhere, so many mosquitoes. जंबे गाड़ी में है ना जंबे Look on this back, there's a mosquito. Where's the fan? You can do everything. There's another problem. You're over endeavoring, and I get chastised. So, you can spread it over here. Mosquito.
गाड़ी से जम्बे लेके आओ। Oh, the mosquito. Just be careful. Afterwards, when I stop singing, don't disturb his singing. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Gopika Mukta Mani, Jaya Gopika. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Rasika Mukta Mani, Jaya Gopika. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Rasika Mukta Mani, Jaya Gopika. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Rasika Mukta Mani, Jaya Gopika. Oh Radhe, Radhe, Radhe Shyam, Radhe Radhe Shyam, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Radhe Radhe Shyam, Radhe Radhe Shyam, Jugal Naam Mero hai Jivan. Radhe Shyam, Jugal Naam Mero hai Jivan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Rasika Mukta Mani, Jaya Gopika. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Rasika Mukta Mani, Jaya Gopika. Oh Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Rasika Mukta Mani, Jaya Gopika. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Rasika Mukta Mani, Jaya Gopika. Oh Radhe, Radhe, Radhe Shyam, Radhe Radhe Shyam, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Radhe Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jugal Naam Mero hai Jivan. Radhe Shyam, Jugal Naam Mero hai Jivan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Rasika Mukta Mani, Jaya Gopika.
जय कृष्ण जय गाड़ी लेके आ रहे हैं। रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण सभी तो मेरो प्यार संग मेरो भक्तार सभी तो मेरो प्यार संग मेरो भक्तार सभी समायो अथुरंत मंती सभी समायो अतुरंत मंती जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं अठोरम ठाकुरुचि सो जय ठाकुरानी की नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं अठोरम ठाकुरुचि सो जय ठाकुरानी की जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे ओ राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे ओ सभी तो मेरो प्यार सभी मेरो भक्तार सभी तो मेरो प्यार सभी मेरो भक्त हर सभी समायो आठ दंत मंत्री सभी समायो आठ दंत राधे 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 जय जय श्री राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे किशोरी मेरे अंगना में डोले छोटी सी किशोरी मेरे
तो ऐसे करो, जाए विधि राखे राम ऐसे कर दो। हाँ? Speel jij met speel deze niet. Gaat samen beter. Jij, ja, bij haar. Zing, moet je wel zingen? Ja. राधे मन बोले मेरे अमृत रस बोले हो राधे राधे मन बोले मेरे अमृत रस Dat was het dus, in Nederland. राधे राधे मन बोले अमृत रस घोले हो राधे राधे मन बोले अमृत रस घोले तू ही मेरी आराधना प्रेमामयी है तू साधना तू ही मेरी आराधना प्रेमामयी है तू साधना तू जो घूंघट पट खोले हमें अमृत रस घोले हो राधे राधे मन बोले अमृत रस घोले बंसी का हर राधे तू ही हो बंसी का हर राधे तू ही जीवन का अनुराग है तू ही बंसी का हर राधे तू ही जीवन का अनुराग है तू ही तेरे नैनों
एक आ जाएंगे निकल गाड़ी up tempo. Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Eerst bied ik mijn ongelimiteerde medegeerbetuiging van mijn geliefde broeder Om Vishnupada, Sutrashikta, Srimad Bhaktivedanta Bandharaj. En ten tweede bied ik ook mijn ongelimiteerde medegeerbetuiging aan mijn genadige Siksha Gurudeva, Nichalila, Paramahamsa Priyacharya, Patita Pavan, Srila Gaurmina Maharaj. En ook aan de genadige genootschap van Nichalila, Paramahamsa Priyacharya, Sutrasiddha, Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Naar alle gurus in onze Rupananga Guru-lijn, alle Vaishnavas, en ook aan alle respecteerde gasten. We zijn nu, je kan het ietsje hoger zetten. Nee, niet de echo, volume. Dus onder de echo is daar een volume. Hij staat volop. Oh, oké. We zijn vandaag gekomen tot het laatste dag van onze Suriname Yatra, onze reis naar Suriname. Waar we getracht hebben om 2 weken lang de zielen die hier aanwezig zijn en in Suriname hun leven aan het voortbeduren zijn. Om ze te inspireren om spiritueel vooruitgang te maken. In zoverre dat ze spiritualiteit eigenlijk als prioriteit in hun leven moeten zien. En hun visie te geven hoe we in kunnen treden tot het pad van Bhakti. Onze Goswamis, die hebben heel veel tijd en heel veel energie besteed van hun leven. De Goswamis, de 6 Goswamis, onder leiding van Rupa Goswami, hebben aan de hand van Chaitanya Mahaprabhu's instructie hun leven gegeven om al de diepe kennis op geschriften te stellen. En niet de kennis die eigenlijk door Vedavyas, door Sukadeva Goswami ook besproken werd, maar Sukadeva Goswami heeft niet de diepe Radha Tattva toegelicht. Er zijn verschillende redenen daarvoor. Mahaprabhu is gekomen. Ja. Mahaprabhu heeft genadig de naam Sankirtan aan ons gegeven. Waar hij zelfs, ik zei tegen mijn Guruji vandaag, laten we Mahaprabhu zijn legacy, zijn voetstappen volgen door in de woud te gaan en alle dieren te verlossen. Mahaprabhu deed dat. Toen Mahaprabhu zijn paligram aan het doen was, ging hij naar verschillende bossen. En door de Mahamantra te reciteren, begon op een gegeven moment alle dieren ook mee te doen met de Mahamantra. Dat we zagen net een aap met zijn handen omhoog. We saw this monkey was doing his hand was up. This is the way when Mahaprabhu was going to the forest, every animal put their hands up. Lion, elephants, tigers, bears, everyone was doing Sankirtan. Dat was de genade van Mahaprabhu. Zijn kracht, omdat hij connectie had met elke Jiva-atma. Daar wordt aangegeven dat een Vaishnava het gemoed van Bhagwan is. Maar niet zomaar een gemoed. Krishna Kripa Murti. Krishna Kripa Murti betekent als Bhagwan zijn genade een vorm aanneemt, dan komt dat in de vorm van een Vaishnava. En via een Vaishnava, ja, wanneer we van een Vaishnava Sankirtan horen, Harikatha horen, dan betekent dat wij allemaal verlost kunnen worden. Deze naam Sankirtan is zeer krachtig in de tijd van Kali. Waarom wordt er gezegd dat we luidop moeten chanten? We kunnen ook kiezen om in ons mond te chanten. Sommige mensen komen
Zeg ik, ja, we kunnen toch ook het naam citeren gewoon in de man, zonder mensen lastig te vallen. Dat is een manier. Als we niet anders kunnen, dan kunnen we dat doen. Maar als wij het niet reciteren, de namen, en alles in ons man doen, dan zal je zien hoe ons man ook van hier naar daar kan brengen. Omdat de man heel rusteloos is. Zoals die apen die we net zagen daar. What was the name of this ape? Monkey, Gurudel? The name of the monkey in Hindi, they were calling? They were calling this restless. Kokati. Kokati means restless. No. Kopi. Means restless. Like the monkey, they cannot sit. Ze kunnen niet op een plek zitten. Ze zijn hele tijd. Zo is onze gedachte ook. Onze gedachte, ons mind is like that. Als we ons gedachten hebben, we zitten misschien hier, maar we zitten denken, ik moet dadelijk nog dit doen, ik moet dat doen. Hoe lang gaat die kata nog duren? Ik hoop dat het snel is. Ik heb honger. Wanneer gaat die prasad uitgedeeld worden? Prasad moet snel komen. Zo is onze gedachte continu met ons aan het spelen, rusteloos. Terwijl onze gedachte geconcentreerd moet zijn. Snap je? Maar hoe kunnen we deze gedachte in controle houden? Door hardop of harikata te luisteren of te reciteren. Reciteren is nog krachtiger. Kirtan is nog krachtiger. Daar wordt gezegd smaranam, kirtanam. Kirtanam zit smaranam ook in. En swaranam ook in. Je hoort, je denkt en je spreekt uit. Daarom is kirtan zo krachtig. Zo krachtig. Ja? Wanneer we kirtan doen, dat betekent dat we niet, een toegewijde denkt niet alleen aan zichzelf. Waarom zit hij hardop? De kirtan te doen, omdat hij elke levende wezen, en elke mier, en elke papegaai, elke aap die hier rondlopen, door alleen maar die klanken te horen, Hare Krishna, zeg hij, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Door dit te reciteren, volgen ze daar, ze krijgen sukriti. Sukriti krijgen ze. Door alleen die klanken te horen. Waardoor ze in het volgend leven een betere geboorte kunnen krijgen. Zo krachtig is het. Dat is onze missie. Mijn Guruji zei een keertje, ik zei Gurudev, kunnen we in dit leven de allerhoogste perfectie bereiken? Theoretisch is dat mogelijk, maar het is zeer zeldzaam. Dat we in dit leven de allerhoogste dham kunnen bereiken. Mijn Guruji zei een keer tegen mij in de morning walk, try to, this life, to serve the Vaishnavas. Only to get Sukriti, to build up your Sukriti. One life, you just give your life to Hari Guru Vaishnava. Try to give your one life. And to serve Hari Guru. Dit manier kunnen we Sukriti, hele grote Sukriti opdoen. Waardoor we een hele gunstige geboorte kunnen krijgen. En waar we misschien in dat leven wel de allerhoogste perfectie kunnen krijgen. Wij hebben in dit leven misschien al heel veel tijd verspild. Heel veel kinderen zijn hier nog die hoeven, maar wij die wat ouder zijn. Maar het wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar dan nog, de tijd die we nog hebben gekregen, probeer dat goed te benutten. En onze Goswamis, de naam Rupa Goswami, die geeft aan hoe we dat moeten doen. Saranagati, overgave. Wat Saranagati betekent. Saranagati is niet ons doel, maar het is hoe we onze deuren openen voor het spirituele wereld. Door Saranagati toe te passen en het is overgave toe te passen. Dan pas begint het werkelijk. Naarmate onze overgave is ook naarmate hoe we kripa kunnen krijgen. Genade. En onze Goswamis leggen uit exact wat overgave betekent. Wat overgave betekent. Hij heeft dat, Rupa Goswami heeft dat stuk voor stuk. Dat is een hele belangrijke boek. Welke boek? Ik denk het even. Upanishadamrita. Upanishadamrita is een hele belangrijke boek. Iedereen die een Vaishnava wilt worden, iedereen die wil begrijpen wat het is om een Vaishnava te worden, dan betekent dat we naast de Bhagavad Gita en alles, dat is de basiskennis, maar dat we ook Upanishadamrita, het boek, die kan je downloaden. Upanishadamrita begint met een U. Als we dat downloaden, zie je alle
regels en hoe we in de Vaishnava, in de Bhakti moeten toetreden. En een van de versen die daar gereciteerd wordt is Anukoya Sankalpa Pratikuja Varjanam. Vishwasa Gopikrita Varjanam. Atmanisheta Karpanya Sada Savidha Svanagati. Anukoya Sankalpa Pratikuja Varjanam wordt gezegd. Alles wat voor ons gunstig is, favorable is, zoals Harikatha, associatie van Vaishnavas, het chanten voor de heilige namen, bij elkaar komen, circuiten doen, onze levensstijl, sattvic levensstijl, alles wat gunstig is, dat moeten we omarmen. Dat is de eerste stap van overgave. Wanneer we dat niet, anders zijn we niet met overgave bezig. Dus we moeten weten wat is gunstig en Pratikuja Varjanam, wat is ongunstig voor mij. Wat zorgt ervoor, welke associatie, welke voeding, welke omgeving is niet gunstig voor mij. En dat wordt gezegd door de persoon, dat moeten we afstand van nemen. Dat is de eerste vorm, teken van overgave. Dat we heel bewust kijken van wat is gunstig voor mijn vooruitgang en wat is niet gunstig voor mijn spirituele vooruitgang. Ja? Rakshasi Biswasa. Rakshasi Biswasa betekent dat we volle vertrouwen, Biswas moeten hebben in Hari Guru Vaishnava. Alle woorden die vanuit een guru komen, moeten we volle vertrouwen tot ons nemen. Zoals een kind. Vaishnava means simplicity. Zoals een kind van de moeder iets hoort en volle vertrouwen op de moeder zijn woorden vertrouwt, zo moeten we ook als ziel, leerlingen van een guru, volle vertrouwen, zonder enige twijfel de woorden tot ons nemen en absoluut achter. Ja? Dat is zo belangrijk. Ja? Rakshasi Biswasa, Gopikrita Varjanam. Ja? En we moeten proberen ons zodanig te vormen, ja, dat we de kwaliteiten adopteren. Ja, de kwaliteiten adopteren van de Vaishnavas. En alles wat gunstig is op het pad van Bhakti. Ja? En er wordt gezegd dat wij ook Atmanishepana. Ja? Atmanishepana betekent dat we moeten proberen de overgave bewust van te zijn. Wat is overgave? Dat we eigenlijk ons hart moeten overgeven aan Gurudev. Ja? Atmanivedana, dat is een van onze limp van ons bhakti. Als we deze categorisering en al deze dingen wat hier genoemd wordt, serieus toepassen, dan pas kunnen we de genade krijgen. Dat wordt heel specifiek gezegd. Alles wordt allemaal goed uitgewerkt. We moeten het alleen maar tot ons nemen en begrijpen en toepassen. En daarom proberen we keer op keer hier te komen en om al deze diepe instructies, dat zijn instructies, Upanishadita betekent instructies, te geven hoe we steeds dichterbij Bhagwan kunnen komen. En wat overgave betekent. En hoe we uiteindelijk ons hart, man, ons lichaam, gedachten, alles wat we hebben aan Bhagwan, aan Hari Guru Vaishnava kunnen overgeven. Dat is de bedoeling. Zo ver moeten we komen een dag. Wanneer we dat niet kunnen, betekent dat we nog heel veel te leren hebben en dat er een dag moet komen. Want pas als dat gebeurt, kunnen we volledige genade krijgen. Maar het is niet 1, 2, 3 te bereiken. Stap voor stap, door associatie te doen van gurus, van Gurudev, Vaishnavas, gaan we steeds leren wat overgave betekent. Omdat zij dat toegepast hebben. Mijn Gurudev is een voorbeeld daarvan. Hoe Saranagati, wat Saranagati betekent. Hoe hij zijn leven, zijn tijd, van alles, elk moment aan Bhagwan geeft. Dat is een voorbeeld. En dat is wat we ook aan de associatie moeten doen. Om te begrijpen, niet alleen te horen, maar kijken hoe Gurudev zijn dagelijkse activiteiten verricht. En hoeveel kunnen we dat ook nadoen. Dat is dan echt werkelijk bezig zijn op het pad van Bhakti. Ja? Ik dank u allemaal voor dat jullie zoveel ons gesupport hebben. Ons laatste dag, ons laatste Harikatha. En ik hoop dat we in de toekomst in Suriname nog meer support kunnen krijgen. Dat we steeds groter en groter en groter kunnen worden en nog meer zielen kunnen redden op het pad van Bhakti. Ik dank u zeer. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Padbhaktaya Namo.
वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अभी अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में कथा श्रवण किया। मानव जीवन की तात्पर्य क्या है, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। बड़े भाग से मानव तनु पावा दुर्लभ सदगंत नहीं पावा। मनुष्य जीवन बहुत अतिव दुर्लभ है, माने और ना माने। अगले जीवन में फिर मनुष्य जीवन शरीर मिले अथवा नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत में क्या बोला, दुर्लभो ना लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यं अनित्य अप्यधीर्णं पूर्णम गतेन पतेत उन्मित्तम जावत निश्चेष विषय खलु सर्वत्र साथ। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित सुनो, दुर्लभो मानुष लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। ये जो मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिल गया, अनेकों जन्म और अनेकों जन आदि भ्रमण करते करते तो भगवान कृपा करके ये मनुष्य शरीर को दिया है। कितने जन्म भ्रमण किया पता है आपका? अच्छा बताओ, शास्त्र में तो लिखा है कितना जन्म? 84 लाख जनी भ्रमण किया एंड 8.4 बिलियन पीसेस। इतना जन्म भ्रमण करते करते फिर भगवान अंतिम में कौन सा जनी दिया हमें? मनुष्य शरीर दिया। इसका भी स्टेटमेंट है, जलजा लवलक्षानि स्थावरा लक्षविंशति क्रमया रुद्रशंख 30 लक्षानि पशव विंश लक्षानि पक्षिणा चतुर्लक्षानि मानव। इस प्रकार स्टेटमेंट दिया गया। पद्म पदम पुराण में इसके वर्णन किया गया। ऐसे मनुष्य शरीर नहीं मिल गया। जो हम देख रहे हैं, ये जो में देख रहे हैं कितने पक्षी है, बंदर है, और जो भी देख रहे हैं, ये सब हम लोग भी ऐसे जनी को हम लोग पार करके आए हैं। आज समझ रहे हैं? हम लोग ने कितने जन्म भी ऐसे ऐसे क्या बोले केज में पिंजरे में हम लोग भी रह चुके हैं। देखो इनके कितने कष्ट हो रहे हैं। एक तो शरीर में पिंजरा है, केज है, और फिर शरीर में पिंजरे में आत्मा बढ़ रही है, और उसके बाद भी और एक पिंजरा है। ये पक्षी कितने कष्ट पा रहे हैं। हम लोग मनुष्य होकर के हम लोग सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, किंतु देखो ये पक्षी जो है जो पिंजरे में रह रहे हैं वो वहीं पर रह रहे हैं। जैसे कैदी होता है ना, क्रिमिनल पर्सन के जैसे जेल में रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस समस्त पशु पक्षी को भी रखा गया है। जंगल में जो पक्षी होता है वो तो ऐसे उड़ रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जहाँ पर जाए उड़ते जाए, जहाँ पर बैठे, जहाँ पर मिल जाए खाना मिल जाता है। किंतु देखो ये जो आप देख रहे पिंजरे में जो देख रहे हो, देखो ये इंतजार कर रहे हैं कब वही व्यक्ति उनके भोजन के लिए भोजन लेकर के आएगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार हमारे आत्मा ये शरीर भी पिंजरे में भी रह रहे हैं। समझ में कि देखो मैं एक बताता हूँ, हमारे वैष्णव कवि कहते हैं ये शरीर भी पिंजरे में दो मित्र रह रहे हैं। दो मित्र रह रहे हैं। मित्र समझते हो? फ्रेंड। कौन कौन? आत्मा और परमात्मा। किंतु देखो परमात्मा रूपी जो मित्र वो आत्मा को दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, किंतु परमात्मा रूपी मित्र आत्मा रूपी पक्षी वो परमात्मा को देख नहीं पा रहे। बीच में ये काले पर्दा कहा जाता है, माया के पर्दा है। और उसी प्रकार हम चलते जा रहे हैं, अपने अपने कर्म फल भोग करते जा रहे हैं। पहले इसको समझो अच्छी तरह से, तब तो तुम्हारे ज्ञान वैराग्य होगा, और फिर ज्ञान वैराग्य के बाद हम भक्ति में प्रवेश करेंगे। वासुदेवे पराभक्ति, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं वासुदेव भगवान में जिसको पराभक्ति हो जाते हैं, परा माने षष्ठ भक्ति हो जाती है, तो उसके क्या दो लक्षण क्या बता रहे हैं? ज्ञान और वैराग्य जो जब अहितुकम, उसमें क्या हो जाता है? इसके ज्ञान और
वैराग्य। ज्ञान किसको कहा जाता है? ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। ये शरीर तो एक केवल मात्र एक पिंजरा है, मिट्टी के एक पिंजरा बना दिया बस है? और मैं कृष्ण के दास हूँ। कम से कम एक ज्ञान हो जाएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति है कृष्ण के सेवा करना, दास की। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तत्शक्ति भेदा भेद प्रकाश, चेतन चेतन। ज्ञान होता है और ज्ञानी के साथ क्या होता है? फिर धीरे धीरे विज्ञान हो जाता है। विज्ञान माने व्हाट इज मीनिंग? विज्ञान रियलाइजेशन, अनुभूति कहा जाता है। जब अनुभूति हो जाता है तब क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर उसी वस्तु की प्राप्ति करने के लिए तड़पता रहता है। ज्ञान उसके फिर तड़पने क्या होता है? तब वैराग्य आ जाता है। वैराग्य मीन्स रिनाउंसिएशन। यहाँ इस संसार में कैसे मैं भ्रमण कर रहा हूँ, इसलिए कहता है लब्धा सुदुर्लभ इदम बहु संभवान्ते। इदम माने यह जो शरीर जो मनुष्य शरीर जो है अनेकों जन्म के पश्चात ये मुझे प्राप्ति है। जो लब्धा सुदुर्लभ बहु संभवते मनुष्यम अर्थदम। ये मनुष्य शरीर जो है हमें सब कुछ देने वाला है, भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर अलावा और किसी जन्म में भक्ति नहीं होती है, ना भगवान की प्राप्ति करने के लिए कोई सुलभ होता है। क्योंकि मनुष्य शरीर में क्या होता है? हम सत्संग कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है। देखो हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, संत महात्मा निकट बैठे हुए हैं, किंतु पशु पक्षी उन्हें कोई पता नहीं है। बस ऐसी हो है। उनके बुद्धि के जो विकास उतना नहीं है। इसके बारे में योग धर्म ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत वर्णन किया। जीवों की विकास, उनके जो क्या बोलते हैं बुद्धि के जो डेवलपमेंट, उसको भी दिखाया गया है। तो सभी, किंतु चेतन की विकास की वैशिष्ट भी दिखाया गया है। इसमें तो बहुत विस्तृत विवरण है। देखो ये समस्त पक्षी कैसे कष्ट भी पा रहे हैं। एक तो देह रूपी पिंजरा मैंने कहा, उसमें तो आत्मा है ही है, और फिर ऊपर से एक पिंजरा भी लगा दिया। वो स्वाधीन नहीं है, वो उड़ करके जा नहीं सकते। ये पक्षी देखो दिन रात ऐसे बैठे हुए, वही उतना ही जो है 3 मीटर बाई 5 मीटर जो है उसके उसी केज में वहीं पर वो है। और उसको व्यक्ति जब खाना दे करके जाते हैं वो खाना खाती है, पानी दे जाता है पानी पीती बेचारा है। नहीं दिया तो एक दिन भूखे में रह जाएगा। किंतु जंगल में जो पक्षी है वो उड़ते जा रहे हैं। स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता क्या है? इंडिपेंडेंस है। किंतु देखो इसके इंडिपेंडेंसी नहीं है कि नहीं है? उसी प्रकार हम लोग भी उसी प्रकार कितने जन्म ऐसे पक्षी होकर के ऐसे पिंजरे भी हम रह चुके हैं। कोई शिकारी हमें ऐसे कर। देखो एक कथा सुनाता हूँ, दृष्टांत देता हूँ। ये बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे। भ्रमण करते करते एक पार्क में जाकर के बैठे। बहुत विशाल पार्क था। पार्क समझते हो? अच्छा, बगीचा जो था, बहुत विशाल बगीचा था, और उस बगीचा के बीच में बहुत विशाल जो पेड़ था, वृक्ष था। उस पेड़ के नीचे संत महात्मा आसन जमा लिया। भाई संत महात्मा कोई काम नहीं है, अपने क्या करना है? आसन को जो है जमा लेना है, समझते हो? आसन जमा लिया, बैठे संत महात्मा। उस पेड़ के ऊपर अनेकों पक्षी जो है घोंसले बनाए। घोंसले समझते हो? नेस्ट बनाए। हजारों पक्षी जो है रहने लगे। मैं सिंगापुर जाता हूँ, सिंगापुर में जहाँ पर मैं जिसके घर में रहता हूँ, उनके घर के पास ही विशाल एक बगीचा है। ये भाई क्या बताऊं, वहीं पर शाम के समय इतना पक्षी आ जाते हैं।
कल कल कर करके रात भर बार बग 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 करते हैं। चलो, तो संत महात्मा उस पेड़ के नीचे बैठे और आसन जमा लिया, अपने भजन करने लगे। संत महात्मा क्या है, किसी के साथ मतलब ही नहीं है। जो संत महात्मा होता है उसे किसी के साथ मतलब नहीं है, अपने भजन से ही मतलब है। बस बैठ गए, आसन जमा लिया और पेड़ के ऊपर अनेकों पक्षी जो है कलरव करने लगे। देखो पक्षी क्या करता है, सुबह जो है सूर्य उदय होने के साथ ही साथ और पक्षी झुंड के झुंड उड़ करके चले आते हैं और जाकर के बहुत दूर दूर जाकर के अपने आहार के जो है वो अनुसंधान करते हैं। फिर शाम के समय ठीक सूर्यास्त के समय सारे पक्षियां सब वही स्थान पर आ जाएंगे। आप देखना कभी कभी वो पक्षियां जहां से उनके घोंसले ठीक वहीं से चले जाएंगे और फिर शाम के समय उड़ करके आ जाते हैं और उसी पेड़ में सब रहने लगे और आकर के सारे रात क्या करते हैं, पक्षी सब कलरव करते हैं, एक दूसरे से बात मानो करते रहते हैं। बात करते हैं कि नहीं है? बस जैसे हम सारा दिन काम करके आते हैं, फिर शाम को जब अपने पत्नी पुत्र आदि के साथ मिलते हैं तब क्या करते हैं, करते कि नहीं करते? देखो उसी प्रकार ये पक्षी भी समस्त जीवन में ऐसी नेचर है। सारे पक्षी जो है बस कलरव करना शुरू करते हैं, कट 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 कट। और देखो पक्षी जाती है वो भी टट्टी पेशाब भी करते रहते। देखो संत महात्मा के ऊपर भी टट्टी पेशाब करते रहते, किंतु संत महात्मा को भी कुछ नहीं बोले। संत महात्मा को भी कुछ नहीं बोले। देखो हम यहाँ पर बैठे हैं, ऊपर कोई एक पक्षी आगे बैठे हैं, हमारे को बीट ना कर दे, बीट समझते हो, टट्टी ना कर दे तो मैं कम से कम ऐसे कर देंगे, क्या करेंगे, हाथ ताली बजा देंगे, तू पक्षी तू यहाँ से उड़ जा। किंतु देखो वो संत महात्मा इतने उच्च कट के संत महात्मा थे, वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। उनके ऊपर बीट भी कर दे, पायखाना भी कर दे, वो कुछ नहीं बोलते थे। संत महात्मा पक्षी जो सब देखने लगे, देखो ये संत महात्मा को हम इतने कष्ट देता हूँ, किंतु संत महात्मा कुछ नहीं बोलते। तब वो पक्षी सब विचार करने लगे, ये जरूर उच्च कट के संत महात्मा होगा। एक दिन सारे संत पक्षी जो है संत महात्मा के निकट आ गए, बैठ गए, कहने लगे महाराज हम लोग कुछ उपदेश दीजिए। आपको हम लोग ने इतने कष्ट दिया किंतु आपने कुछ नहीं बोली। संत के स्वभाव क्या है, संत स्वभाव क्या है, दूसरे को उपकार करना है। संत स्वभाव नवनीत समाना। तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं क्या, संत के स्वभाव क्या है, दूसरे के दुख देख कर के बस द्रवीभूत हो जाना। संत स्वभाव नवनीत समाना। नवनीत माने, नवनीत समझते कि नहीं, मक्खन, मक्खन के कहा जाता है, नवनीत कहा जाता है। संत स्वभाव नवनीत समान। बोले देखो मक्खन हाथ में उंगली में रखने पर उंगली के ताप से मक्खन क्या हो जाता है, पिघल जाता है, किंतु संत महात्मा दूसरे के दुख देखने के साथ ही उसके चित्त पिघल जाता है। और संत महात्मा सोचते हैं ऐसे जीव के उद्धार कैसे करो। देखो संत महात्मा सारा पक्षी के कहने लगे, देखो तुम लोग हमारे प्रति विश्वास हो तो मैं आप लोग के एक उपदेश देता हूं। सारे पक्षी कहने लगे महात्मा जी आप बताइए, बताओ कि नहीं बताओ, विश्वास है तो बताओ, नहीं तो मैं दूसरी कथा बता दूंगा। विश्वास है क्या बताऊं। देखो संत महात्मा कहने लगे, देखो तुम लोग एक मंत्र जप करना। क्या जप करना, मंत्र, बहुत सरल मंत्र जप कर लेना, इससे तुम्हारे जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा सारे पक्षी बोले महाराज जी बताइए मंत्र। मंत्र बताता हूँ, मंत्र अच्छी तरह से याद कर लेना। बहुत सरल मंत्र, संस्कृत मंत्र नहीं है, सारे मंत्र संस्कृत में होता है, किंतु मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ ना बहुत हिंदी मंत्र है, बस हिंदी में याद कर लेना। क्या बोला सुनो अच्छी तरह, चार पद है उसमें, 4 लाइन है। क्या बोले, एक दिन शिकारी आएगा। क्या बोला, एक दिन शिकारी आएगा। बहुत सुंदर है।
है, दाना डालेगा, बोलो दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, है? कितने चरण हो गया? 3 हो गया। चौथा है ना, है? लोभ से फंसना नहीं। तो क्या बोला? लोभ से फंसना नहीं। फिर याद कर लो, फिर एक दिन शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। बस इस मंत्र की जप करना। देखो संत महात्मा जो वाणी होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है, वेरी पावरफुल होता है? अर्थ समझे अथवा नहीं समझे, मंत्र संत महात्मा से ले लो, बस उसे जपते रहो। ये जरूरी नहीं है मंत्र के अर्थ हम बता दें, जरूरी नहीं है, क्योंकि मंत्र उसकी कहा जाता है जिसमें स्वाभाविक स्वतंत्र क्षमता है, इंडिपेंडेंस पोटेंस जिसमें है, स्वतंत्र शक्ति जिसमें है। समझ में आता है? मंत्र में क्या होता है, जैसे आग है, आग माने अथवा नहीं माने, वो आप जलाएगी नहीं जलाएगी? जलाएगी नहीं जलाएगी? जलाएगी। पानी पियो, आपके क्या हो, प्यास अपने आप, ये पानी है कि नहीं, आपने पानी पी लिया, अच्छा विष पी लिया, आप जानते नहीं हैं ये विष था, विष समझते हो, पॉइजन, तो आपको हानिकारी होगा कि नहीं होगा? शरीर में हानिकारक होगा। अमृत पी लिया, जानते नहीं थे अमृत था, नेक्टर था, आपके शरीर में पुष्ट होगा। तो उसी प्रकार मंत्र के बारे में हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, जाने अनजान में मंत्र भी जप करे, मंत्र की क्रिया अपने आप है, अर्थ जाने नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तथापि लोगों की समझाने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, कौतूहल के लिए हम कहते हैं मंत्र का अर्थ बता देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे गोपाल मंत्र काम करते हो, जरूरत नहीं। अच्छा चलो, संत महात्मा ने क्या मंत्र दिया, याद है? फिर भूल गया? एक दिन, फिर दूसरी चरण दाना डालेगा, तीसरी लाइन क्या है? जाल बिछाएगा, चौथी चरण क्या है? लोभ से फंसना नहीं है, लोभ से फंसना नहीं। बस देखो संत महात्मा ऐसे कहा करके वो पाक बगीचा से चले गए। सारे पक्षी के कहने, तुम लोग इसको हर रोज 3 बार जप करना, जैसा हम कहते हैं भाई गायत्री मंत्र तुम्हें लिया 3 बार जप करो। देखो बद्ध जीव के स्वभाव है, कोई जप करता है, कोई भी नहीं करता है। ले तो लिया मंत्र, हमें भी पता है? कुछ जप करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जिस दिन मंत्र लिया उसी दिन ही अपने जेब में रख दिया, कागज देते ना मंत्र के लिए, उसने कागज दे दिया, उसमें रख दिया, जपमाला दे दिया और घर में जाकर के टांग दिया। ऐसे बहुत लोग होते हैं। और भी देखो बहुत ऐसे लोग होता है, जैसे जैसे संत महात्मा आ जाते ना, सबसे भी जपमाला ले लेते हैं, कैसे भी को उसको छोड़ते नहीं कि संत महात्मा कहते महाराज जी मुझे रुद्राक्ष माला दे दीजिए। फिर और कोई संत महात्मा आ गया, महाराज नीम की माला दे दीजिए। वही कहते, फिर आके कोई संत महात्मा आ गया, महाराज तुलसी की माला दे दीजिए। तो उसके घर में कितने माला हो गया? 3 हो गया, और एक भी माला जप करते नहीं है, बस उसी के रह गया। कहते हैं ये संत महात्मा हमारे लिए तुम जप करो, मैं तो यहीं पर रख देता हूं। चलो, उस पक्षी में कुछ मंत्र जप किया, कुछ नहीं किया, चलो, किंतु मंत्र की फली तो है ही है। देखो पहले क्या था मंत्र की, क्या था? एक दिन शिकारी आएगा। भाई सचमुच एक दिन वो जंगल में जो है शिकारी आ गया। क्या आ गया? दाना डालेगा, दाना डाल दिया, और जाल बिछाएगा, जाल बिछाया। देखो पक्षी को पता नहीं था। प्रातः काल में सारे पक्षियां जो है उठे, देखा क्या उनके पेड़ के चारी तरफ सुंदर सुंदर बासमती जो है चावल बिछा हुआ है, गिरा हुआ है। और देखते ही सारी पक्षियां एक दूसरे के बुलाने लगे, आ जाओ आ जाओ, आज बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भगवान ने कितने कृपा कर दिया हमें। देखो कितने सुंदर सुंदर चावल के दाना यहाँ पर पड़ा हुआ है, आ जाओ हम लोग सब चुन लेते हैं। भाई क्या कि सारी पक्षियां पेड़ से नीचे आकर के टक 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 टक
क्या करने लगे? चावल बीनने लगे। हैं? देखो पक्षी के स्वभाव होता है, वो पहले चावल के जब बीन लेते माने ले लेते हैं और लेकर के कहाँ रखते हैं? अपने गला में रखते हैं। आप देखना है, आप इसको देखना, वो जल्दी अपने हजम नहीं कर लेते, मैंने स्टोमक में नहीं लेते हैं, पहले यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, जल्दी जल्दी टक 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 है। आपके घर में मुर्गा है, किसी घर में मुर्गा भी देखना, थोड़ा दाम चावल दे देना और टक 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 खा लेगा और यहाँ पर जो है गले में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर धीरे 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 स्टोमक में भेजता रहता है। ये पक्षी को देखने, पक्षी की स्वभाव होता है। तो सारे पक्षी का टक 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 भाई इतने हो गया, सब चावल के कण वो क्या करने लगे? हैं? अरे खाने नहीं, क्या बोला? बीनने लगे, चुनने लगे। मैंने कहा था भाई, वो शिकारी क्या किया? जाल बिछा दी, बहुत लाइलन जाल होता है ना, बहुत सूक्ष्म व्हाइट कलर के होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। और जब सारे पक्षियां जब वो चावल के कण जब बीनने लगे और दूर से वो शिकारी क्या की? रस्सी को खींच लिया और सारे पक्षी क्या हो गया? जाल के अंदर छटपट छटपट आने लगे। क्या करें? वो शिकारी विचार करने लगे, पक्षी तो हमारे जाल में ही है, कहाँ जाएगा? तो शिकारी किस काम के लिए थोड़ा दूर चले गए, अभी आता हूँ, हो सकता है लघु शंका करने के लिए चले गए। लघु शंका समझते हो कि नहीं? बाथरूम चले गए, बोले 2-5 मिनट में आता हूँ और सारे पक्षी को सब ऐसे करके बस मार करके सब ले जाएंगे। बस वो शिकारी बाथरूम चले गए और सारे पक्षी छटपटाने लगे। देखो सारे पक्षी एक दूसरे पर क्या करें, निकले कैसे? सारे पक्षी एक दूसरे करने लगे। देखो वो संत महात्मा गुरुदेव ने हमके मंत्र दिया था और गुरुदेव ने ये कहा था, ये देखो इस मंत्र के जप करना और तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसे कोई विपद आ जाए, मैंने कल कहा था ना, जीवन में कभी तुम्हारी विपद आ जाए, एक बार निश्चिंग प्रहलाद के नाम जप कर लेना, 100% गारंटी है आपके सारे बाधाएं क्या होगा? ये विश्वास करना चाहिए। तो सारे पक्षी करने लगे। हाँ, गुरुदेव ने कहा था जीवन में कभी विपद आ जाए, कैलेमिटी आ जाए, गुरुदेव के स्मरण कर लेना और यह मंत्र जप कर लेना। कहता हाँ गुरुदेव 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 गुरुदेव, सब पक्षी करने लगे। अरे फिर दूसरे पक्षी अरे गुरुदेव के स्मरण कर, साथ ही साथ मंत्र जप कर लो। बोले मंत्र याद है? अरे पक्षी बोले मेरा तो पहली चरण याद है। अच्छा बताओ पहली चरण क्या है? एक दिन शिकारी आएगा। दूसरे बोले भाई और दूसरी चरण क्या है? तो भूल गया। हाँ मेरा थोड़े दूसरी चरण याद है, क्या? दाना डालेगा। अच्छा तीसरी चरण क्या है? जाल बिछाएगा। हाँ ये तो याद आ रहा है, बहुत दिन मंत्र जपा नहीं है। अच्छा चौथा चरण क्या है? लोभ से अच्छा हम तो लोभ से फंस गया, चावल के दाना देख करके लोभ से फंस गया कि नहीं है? अभी क्या करें? बोले अच्छा मंत्र जप करें, यही मंत्र जप करें। एक दिन शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। भाई मंत्र जप करने के साथ ही साथ गुरुदेव ने और एक कहा था, तुमने अपने कुछ प्रयास करो। प्रयास समझते हो? होना चाहिए। देखो भजन की क्या है, दो पहलू है। एक क्या है, अपना भी प्रयास होना चाहिए और दूसरी भगवान की कृपा है। ये दो उंगली रखा गया। एक है क्या? अपना योर endeavor and another the Lord's mercy. You will get the receive the mercy of Lord, भगवत कृपा है। यदि तुम्हारे प्रयास नहीं हो, कहते हाँ ठीक है सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। कोई लोग कहते हैं अरे भाग में है तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। तुम प्रयास करो, तुम्हें मिलेगा जरूर। इसलिए भक्ति जगत में दो वस्तु हम देते हैं, दो उंगली
माँ जसोदा बाल गोपाल के बांधने के समय 2 उंगली सटीज हो गया। एक है उंगली क्या है निर्देश, हमारा प्रयास, और दूसरी है भगवत कृपा, प्रयास करना पड़ेगा और साथ ही भगवान को। सो सारा पक्षी करने लगे। देखो भगवान ने हमें क्या दिया, 2 पंखा दिया कि नहीं दिया। इस पंखा को हम थोड़ा हिलाए, देखो एक ही साथ में सारे पक्षियां क्या करने लगे, पंखों को हिलाने लगे, ऐसे हिलाने। देखो जब सारे पक्षियां पंखा के हिलाया, देखते देखते जाल समेत 2 सारे पक्षियां कहाँ गया, ऊपर चढ़े गए, उड़ने लगे। एक ही साथ में है ना, देखो। और उड़ते उड़ते, भाई जाल में तो है, ज्यादा दूर उड़ नहीं पाएंगे, पर देखो उस पार के पास में एक बड़ा नदी था, और सारे पक्षी ऊपर उड़ गया, और वो तो देख रहे, शिकारी देख रहे, अरे ये क्या हो रहा है, सारे पक्षी में और जाल समझ लेकर कहाँ जा रहे। भाई देखो थोड़े देर पास विशाल नदी था, और नदी के बिल्कुल उस पर पार करके वो सारे पक्षी जाल समेत तीर पर नदी के तट पर गिर गए। देखो मैंने कहा ना, वो पक्षी चावल के कण को जो है अपने गले में रखा था ना, भाई जब नीचे गिर गया ना, सारे चावल को साथ क्या कर दिया, उल्टी कर दिया, सारे चीजें बाहर आ गए। देखो भगवान की ऐसी करिश्मा भी है, और उसी नदी के तट पर हजारों जो है चूहा था। क्या था, चूहा। और देखो ये चावल के कण जब बाहर आ गए ना, किससे, पक्षी के से, चूहा आकर के वो जाल को पहले क्या करा, कुट 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 करे काट दिया, और चावल के खा, और सारे पक्षी क्या की, जाल से बाहर आके उड़ के चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य क्या है, हम सदगुरु के आश्रय करके मंत्र जप आदि करें। देखो हमारी सारी ये बाधाएं जो है सब दूर हो जाएगा, और एक दिन हम इसी प्रकार मुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। यही भगवान की प्राप्ति करके उपाय है क्या, सभी भगवान के ये नाम जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे चैतन्य महाप्रभु कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा है, न कुछ बोले। चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक उन्होंने उच्चारण, वो भी लिखा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उच्चारण करते, रिसाइट करते थे, जिसको कहा जाता है क्या, शिक्षा अष्टकम, 8 श्लोक। उसी 8 श्लोक ही जो है सारे वेद पुराण उपनिषद के सार माना गया है। सारे मानो सप्त समुद्र के जल एक घड़ा में रख दिया। ऑल द वाटर ऑफ द ओशंस जस्ट पुट इन द वन स्मॉल पॉट। है क्या चीज, नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे सुंदर जो मधुर नाम है। आप घर में रहें, अपने बेटा बेटी पुत्र कन्या और माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र के साथ रहें, इसे कोई हर्ज नहीं है, दोष नहीं है। किंतु क्या करना चाहिए, जीवन के उद्देश्य क्या होना चाहिए, नाम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गृहे बा बनेते थाके हा गौरांग बोले डाके, नरोत्तम मागे तार संग। मैंने नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में करे, आप घर में रहें अर्थात अपने परिवार के साथ रहें, कोई हर्ज नहीं है। खुद कस करके आप रहिए, कुछ भी करिए, जैसे आपके बिजनेस हो, विचार हो, जो आप काम करते रहो। किंतु देखो भगवान के भजन करो, नाम कर लो बस। यही नाम प्रभु क्या करेंगे, आपको संसार से उद्धार कर देंगे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी, तन्मायत तद्भक्त तन्मायत आसक्त चित्तेषु ननाथ भूवा। वित्रासुर कह रहे हैं, हे भगवान मेरे पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार मैं संसार में रहूं, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहूं, इसमें कोई दोष नहीं।
इसलिए ममत्तम श्लोक जनेश सखम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी। हे प्रभु, आपके मां के अनुसार इस संसार में रहूं कोई भी बात नहीं, किंतु एक आपके निकट एक मैं वर प्रार्थना करता हूं। क्या वर प्रार्थना करता हूं? जिस संसार में जो कुछ व्यक्ति है उसके साथ कभी मेरा आसक्ति ना हो। असक्त चित्त सन्ना तो बुआत है। और क्या है? आपके जो प्रिय भक्त जो है उनके साथ मेरा क्या हो जाए? मित्रता हो जाए। इसलिए ममत्तम श्लोक जनेश सखम। हे भगवान, आपके जो परम प्रिय भक्त लोग वैष्णव जो है उनके साथ मेरा मित्रता हो है, और संसार के लोगों के साथ मेरा आसक्ति ना हो, क्योंकि उनके साथ मैं रहूं है। इसलिए कहते हैं संसार के रहने के लिए यही एक तरीका है। संसार में रहिए, कोई भी बात नहीं है, किंतु आसक्ति किस में होना चाहिए? भगवत भक्त, भगवत नाम, भगवान के साथ। कहते हैं ममोत्तम श्लोक जनेश सखम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म तन्मायातम असक्त चित्तस्य ननाथ भुवा। बहुत सुंदर श्लोक है। इसी प्रकार संसार में रहने की तरीका है। यही नाम करते करते आपके हृदय में इतना आनंद होगा। हमारे चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि नाम ही प्रचार किया, जगत जीवों के क्या शिक्षा दिया? कुछ करना नहीं है तुम्हें इस कलियुग में, केवल क्या करो? हरे नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कालो नास्तिव 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 था। इस कलियुग में और कोई कुछ करना नहीं, न कोई योग तपस्या हार्ड स्टडीज कुछ करना नहीं है। केवल वास क्या करो है? हरिनाम करो। पर कैसे हरिनाम करोगे? आकंठ पुरिया करो, प्रसाद सेवन। महाप्रभु ने क्या कहा? प्रसाद यहीं पर रखा है। देखो हमारे प्रभु जी कितने सुंदर सुंदर डेलिशियस प्रसाद रख दिया सामने है। ये प्रसाद कहाँ तक लोगे आप? बोले गला तक और करके जितना हो सके आप खाते रहो है, पीते रहो और क्या करते रहो? हरिनाम करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के उठ चलने लगे और चलते चलते झारखंड के वन में जंगल में आ गया और देखा क्या? उस जंगल में कितने बिहार जंगल था, घनाघोर जंगल था है? एक दिन चैतन्य महाप्रभु आधी रात में उठे है, और उठ करके चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे? नाम संकीर्तन करने लगे। और महाप्रभु के साथ दो व्यक्ति था, एक उनके जो है रसोईया ब्राह्मण बालक था, और एक महाप्रभु के भुट कम्बल आदि लेकर के, कपड़ा आदि लेकर चलने वाले एक व्यक्ति था। क्या था उसको? बलभद्र भट्टाचार्य है, एक ब्राह्मण और एक बलभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु के साथ चलते दो। देखो आधी रात में जब चैतन्य महाप्रभु उठ करके जब हरिनाम करने लगे और चलने लगे जंगल के रास्ते, बहुत घनाघोर जंगल था है? केवल पगडंडी था, केवल पगडंडी समझते हो कि नहीं? बड़ी मीनिंग ऑफ पगडंडी। पगडंडी मीन्स जंगल के इतने छोटा रास्ता केवल एक व्यक्ति केवल जा सके, वो भी पता नहीं पैर कहाँ रख रहे हैं। वो महाप्रभु नाम संग हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 है। मैं क्या बताऊं? उस रास्ते में पगडंडी में एक जो है शेर और बाघ जो है बस लेटे हुए थे है? और महाप्रभु आंख बंद करके मानो नाम में मत्त हुए थे है? और महाप्रभु के श्री चरण कमल और वो शेर के शरीर पर लागने के साथ ही साथ महाप्रभु ने क्या कहा? कृष्ण कहो कृष्ण कहो। बस देखते देखते ही वो शेर ने क्या की भाई, देखते ही बस बलभद्र भट्टाचार्य और ब्राह्मण जो बालक लोग जो तब जो उनके महाप्रभु विजय था वो तो डर गए। अरे शेर तो जरूर हमें आक्रमण दिखा है। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, महाप्रभु जब कहा कृष्ण कहो है, और वो शेर ने क्या की? बाघ ने क्या किया? दो ऐसे सामने के पैर को उठाया है, क्या बोलते इसको? पोज है,
हाथ को ऐसे उठा, दो पोज ऐसे उठा लिया। और देखो वो शेर क्या बोले, कृष्ण कृष्ण बोले व्याघ्र नाचिते लागिलो। खाना तो बहुत दूर की बात है, वो शेर क्या करने लगे, दोनों ऐसे हाथ को मानो उठा करके नृत्य करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक नहीं हजारों जो है शेर, हरा जो बाघ, बंदर, देखो हम उठा बंदर भी ऐसे कर रहे थे। हैं? आप लोग ने क्या कहा, हरे कृष्ण बोले, वो बंदर भी आप लोग के ऐसे करके प्रणाम भी करने लगे। जो कैसे वैष्णव काम करते हैं, देखा कि नहीं देखा? शायद आप लोग ने फोटो लिया होंगे, शायद हमारे फोटोमैन कहाँ गए? आपके पीछे लिया कि नहीं लिया? You do take? हाँ, देखो से वो भी ऐसे करने लगे। यही महाप्रभु है। इसी प्रकार महाप्रभु नाम प्रेम दे करके सभी जीवों के क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। और कुछ करना नहीं है जीवन में, तो नाम कर लो बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। हाँ, अभी आप प्रसाद दीजिए, 10 बज गए ना। प्रसाद महाप्रसादी गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सर्वपुण्यवतां राजन् विश्वासनैव जायते। हरे शरीरा विद्याजार जड़ेन्द्रियतायका जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य ध्यायति ब्रह्ममय सुरमति ताके जेता कठिन संसारी कृष्ण वरदयामय परिवारे जिया जय साक्षात अन्न दिला भाई সেই অন্নমৃত পাও রাধা কৃষ্ণ গাও প্রেমে ডাকো চৈতন্য নিতাই প্রেম ভরে ডাকরে দয়াল নিতাই দয়াল গো দয়াল নিতাই দয়াল গো দয়াল নিতাই দয়াল গো দয়াল নিতাই দয়াল वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की जय जय श्री राम। सब प्रसाद सबको बांट दो, छोटा सा कीर्तन कर दो। सबको प्रसाद बांट दो। हाँ, बोले काहू ने मेरो श्याम देखो, 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 काहू ने मेरो श्याम देखो। ओ राधा तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरे श्याम हमने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। ओ राधा तेरे श्याम हमने गोधन में देखो, राधा तेरे श्याम हमने गोधन में देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो,
महाराज